Hello, good evening, everyone. Hello, good evening, Hi, ma'am. good evening, Sneha. How are you? I'm good, ma'am. Okay, so good evening, everyone. I am Sneha Singh, former Cultural Secretary, NHMC, final year student, and serving as a Bijan campus ambassador at Bijan Pharmaceuticals right now. And we are thrilled to have with us Dr. Rehana, whose name need no introduction with us. And I am being a big fan of ma'am's content every day. As a medical student, she has been inspiring a lot of students like us. With the experience of 15 years over clinical practice, she is MD in Organon and currently serving as assistant professor at Motilal Medical College. Motiwala Medical College. Motiwala Medical College at Nasik. So today we are discussing one of an interesting topic that I and ma'am were discussing in the afternoon as well, that it is going to be something that students will love to learn. So it is integration of mind rubrics with Organon and with a special case discussion by Dr. Rehana. So we are thrilled to have you, ma'am. Thank you so much for collaborating with us. And let us begin with your session. Thank you so much, Sneha. Thank you very much for the invite and request from BJN Pharma. I know you are representing them, so you yourself are face of BJN. And at such a young age, you're doing great. You're just in fourth year. And Thank this you. is what good digital platform use students should do that you're doing, right? So I am very excited because such a big opportunity, and it's been so long that I have spoken on Instagram live, and I was planning to come live, but then I thought this is the best thing to do, that we have someone a good platform for all students to understand, right? So let's start, because I think so we'll have to finish in an hour, because once I start talking, it gets very lengthy. So I know myself. So let's start up. Or should we wait for people to join in? What do you say? Should we take 1 2 more minutes and let people join in more? Ma'am, I think people will start coming one by one. Okay. Huh. Okay. So it's okay to start, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So today we are going to discuss cases, because I thought that oral part or bookish things does not is very different from what we study in college and what we apply in clinic. Okay, because I faced it and I know how students are facing it right now. So we need to have a good application of Organon that we read in books and then put up in clinic. So today we are going to discuss 2 3 जितने भी cases होंगे, but I chose particularly 2 3 cases of drug which is very syphilitic, and how syphilis is seen in this era. कलयुग में कैसे सिफिलिस दिखता है हमको, और हमने उसको कैसे पकड़ना चाहिए क्लिनिकल बेसिस पर, और कैसे हम रिलेट करेंगे डिजीज को, ऑर्गेनॉन को, मटेरिया मेडिका, रेपर्टरी, एवरीथिंग. Okay, so when somebody tells me how do you feel being a homeopath, I feel so excited. Excitement is the only thing that I feel when I go to clinic, because I know I'm not going to get bored. I know if 10 people are coming for PCOD, I know I will not get bored, because every patient is going to have their own story, and I am going to help them with their story and prescribe medicine. And that is how, otherwise, it becomes very mundane, it becomes very routinistic, right? So I'll discuss one case. So I'll just read है ना, बहुत सारा cases रहते हैं, so I don't remember, but I will just read and tell you थोड़ा starting में. So yeah, this was a case of a 50-year-old man, and he had come to us for CML, chronic myeloid leukemia. Okay, and it's a known case of CML and known case of diabetes mellitus type 2. Skin gotten darkened, he got cataract and multiple issues. Now, when this person has come to us, he's already taking medicines for CML for like 2 years or 1 year, 1.5 year. So when we started taking history, as we all know, when we hear the name leukemia, we know it's a type of blood cancer, right? And we know we are dealing with syphilis. इसमें अगर हम सोरिक ड्रग्स देंगे तो ये काम नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि माइजम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप केसेस लेते हैं. तो जब आप सोरिक केस लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सोरिक ड्रग्स या मोडालिटीज
या कॉन्कोमिटेंस कितने इंपॉर्टेंट है. जब आप साइकोटिक ड्रग्स लेते हैं तो आपको सोरा भी पता होना चाहिए और सिफिलिस भी पता होना चाहिए, क्योंकि साइकोसिस बहुत कम बार अकेले आता है क्लिनिक में. इट ऑलवेज कम्स इन कंपाउंड ऑफ सिफिलिस. और इफ देर इज फ्रैंक सिफिलिस, लाइक CML is frank syphilis. Okay, what is diabetes? Diabetes, if becomes uncontrollable, then there is no production of insulin, then it becomes syphilis. Otherwise it is psychosyphilitic. Okay, so and he had a pigmentation, dark pigmentation on his this knuckles, lips, everything got darkened. Now this could be side effect of cancer medicines as well. So when we started the history, husband and wife both came. Okay, so we take an entire history taking, physicals ले लिया, personal history ले लिया, desire aversion ये सब ले लिया, past history ले लिया, and then we came to the mind section, and then I started, how did you get diagnosed CML? See, this is a very profound question that everyone should ask their patients when they come for any kind of syphilitic disease. How did you recognize that something is wrong in your body? Okay, so the patient said, I had a fever and the fever was not subsiding. So after 5 days, the doctor GP suggested, let's go for a CBC and malaria or these that जो सारे basic Vidal test होते हैं वो सारे करवा रहे थे. So when they started doing test, his WBC was 3 lakhs. So the normal range for WBC is up till 11-12,000. Okay, and the WBC came 3 lakh. So anybody who sees such a big number, the first alarm that goes in everybody's mind is this is abnormal proliferation of WBC. Anything which is abnormally proliferating in your body in the form of cell is cancer. Okay, so then they said, then we got recognized, and then he went to a oncologist, hemato-oncologist, and then the treatment started. Now this is pathological part. Aphorism 3. तुमको पता होना चाहिए कि ये शुरुआत कैसे हुई, पता कैसे चला. Then I went into mind. Then I said, this is fine. The physical part is fine. You have to tell me, before diagnosing this, was there any change in your behavior that you were finding very different to your personality? Something that you felt ki, this is insane. This is not me. And his wife was sitting along. So I'll tell you, this man is at a very big managerial post in an esteemed bank. ओके, अच्छा खासा बड़ा बैंक है और उनके ब्रांच की प्रॉपर मैनेजर है, रीजनल हेड वगैरह. So he has that personality also, little obeys, and his looks are very serious, and he's come here to take medicines. Okay, he's not here like when you generally see people who are from Ophidia or Phosphorus or other jovial kind of personalities. They laugh it out, they try and make a rapport, they will talk to the doctor, all of these things. But this guy wasn't doing all of these things. He was very serious that I had CML and I've come for treatment. So then wife said ki, yeah, I remember before getting diagnosed, he had a very harsh temper. So गुस्सा सबको आता है. देखो, ये चीज याद रखनी चाहिए कि गुस्सा एक बेसिक इमोशन है. 4-5 हमारे बेसिक इमोशन है, उसमें गुस्सा बहुत बेसिक इमोशन है. अगर आपको गुस्सा नहीं आता है तो आप वेजिटेबल है. ओके, बट अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो वो कितने मेजरमेंट में आता है ये हमको पता होना चाहिए, क्योंकि वो माइजम चेंज होते हैं, है ना. कोई पैदा होते से मोबाइल फोड़ता नहीं है, टीवी फोड़ता नहीं है, राइट. वो एक इवेंचुअल प्रोसेस होता है. एक पर्सन का माइंड सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस को ट्रैवल करता है. So when she said ki he had a very severe anger, I was so curious in asking what kind of anger did he show. So he himself started saying ki I'll tell you, I was so angry that I broke down my TV. There was a bat in my room. If anybody would say anything, I would just hit the bat on the floor and the bat used to break down. And I'm really sorry to tell that my wife, I have hit her so many times. And there were times that when I used to calm down, I used to talk to myself, this is not me. I've always been such a calm, decent manager, and I have never been so abusive at my home. Proper So syphilitic person. yeah. So now we are understanding that something went off in a person. इसी को हम बोलते हैं कि dis-ease. When a person is going from an ease or a normal disposition to something which is very diseased. So the disease got into his head. They did not diagnose CML up until, I'm telling you, यहाँ तक diagnose नहीं हो रहा था. And this was very important because wife said
it was she said it was a nightmare for us. It was horrible. When he used to come home, we used to just keep quiet because we don't know what a small thing, if the cup is not correct, if the food is not good, he is going to throw plates, he is going to hit kids, which he was not. And then he was diagnosed CML. Okay. एंड देन वी मूव्ड अहेड इन हिस्ट्री बिकॉज आप पूरा एक लाइफ सिचुएशन लेते हैं, हाँ? तो जब हम हिस्ट्री ले रहे थे तो फिर हिस्ट्री में हमने सब पूछा कि पहले क्या करते थे, तो जॉब अच्छी थी, वेरी स्टूडियस, दैट इज वाई वेरी हार्ड वर्किंग. सो ही सेड आई एम एट अ प्लेस वेयर आई कैन स्विच पीपल so easily, and I am at a very highest position in my bank, so I can transfer anybody, I can do anything. But ma'am, I'll tell you frankly, I never did that. इनफैक्ट अगर मुझे लगता था कि कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए परफेक्ट है, देन आई विल पिक अप दैट पर्सन एंड मेक एनीथिंग एंड पुट हिम इन दैट पोस्ट, बिकॉज आई नेवर वांटेड कि इसको इनजस्टिस मिले लाइफ में, कभी भी इसके साथ कुछ गलत हो. तो देन आई क्वेश्चन, देखिए जब आप हिस्ट्री लेते हैं ना, तो आपको एक चेन पकड़ते आनी चाहिए. ये आर्ट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग है. अगर आप एक ही पेशेंट को 100 सवाल पूछेंगे ना, नेक्स्ट टाइम पेशेंट नहीं आने वाला. क्यों? क्योंकि हैनेमन ने भी कहा है केस टेकिंग में कि उसको वॉन्डर मत कराइए, वो आपको वॉन्डर कराएगा या आप उसको वॉन्डर मत कराइए. तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या सीख कर रहे हैं पेशेंट के अंदर. तो अगर एक पेशेंट बहुत खुद से ओपनली कह रहा है कि मैं कभी नाइंसाफी नहीं सहूंगा, अगर वो चीज किसी की पोस्ट है, किसी का पैसा है, सी बैंक में ना बहुत झोल होता है मनी वाइज. तो ही सेड कि आई नो इट हैपेंस, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी बिकॉज दे नो आई एम गोइंग टू वर्क वेरी पर्टिकुलरली, so very meticulous in his work and everything. Then he said during COVID, because he came, I think so last year he came to me. So he said after COVID, after few months, a year or so, he got diagnosed with CML. So then I asked, did you had COVID? So he said, yes, I was admitted in hospital and so was my mother. The moment he said that, he started crying. एकदम मतलब क्राइंग मतलब ऐसा रोना. देखो रोना भी ना तरीके होते हैं. यानी आप जब एक पेशेंट रोता है ना, हफस हफस के रो रहा है, हिचकिया लेके रो रहा है, अंदर अंदर रो रहा है, थ्रोट में गल्पिंग करके रो रहा है, एक कॉर्नर में देख के उदास है, ये सारे बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ ग्रीफ होते हैं. ठीक है. तो जब एक इंसान अपने दुख के बारे में बात करता है ना, तो आपने उसका टोन नोट करना चाहिए, आपने उसका बॉडी लैंग्वेज नोट करना चाहिए. एंड मेन ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मेन टू क्राई. That's the sad part of this world. They find it very difficult to cry. But he just gulped. Andar liya. So then his wife said, ki ma'am, he was also admitted, his mother was also admitted. Both of them were admitted for COVID. And during that phase, his mother passed away. And because he was inside ICU, nobody told him about it. So when he got discharged 10 days later on, he asked, where is my mother? During hospital hours, he used to ask and they used to say, she's fine, she's fine. So he believed them. But बाद में जब वो घर पे आए और उनको पता चला कि मम्मी को मर के 10 दिन हो गया है, he said, ma'am, you won't believe how I felt and how I still feel. And again, he's controlling his tears. Mouth dry हो रहा है and then he's feeling very uncomfortable. So then he started saying, ma'am, I am such a son. I have always been along with my mother. उसके हर सुख दुख सब में मैं साथ था पूरी लाइफ. पर जब वो मरी ना, तो मैं उसके साथ नहीं रह पाया. मतलब ये मेरे लाइफ का सबसे खराब मोमेंट है और मुझे अपने आप पे शर्म आती है कि मैं कैसा बेटा हूँ कि मैं अपनी माँ के डेथ के वक्त उसके बेड साइड नहीं था और मैं 10 दिन बाद मुझे पता चला. सो ही गॉट वेरी एंग्री एट द फैमिली, बट देन इवेंचुअली he started blaming himself. वो बोला कि मेरी गलती है ये मैम, मैंने ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि मैं बैंक जाता था, मैं आया घर पे, मैं कोविड लेकर आया, शायद मैंने मेरी मम्मी को कोविड दिया और मेरे वजह से मेरी मम्मी का डेथ हो गया. ओके. सो आई सेड ऐसा नहीं है सर, बहुत सारे लोगों को जिनको कोविड नहीं भी था उनके घर में भी कोविड आ गया. सो आई ट्राई टू अश्योर द पेशेंट कि ठीक है, इट्स ओके, इट्स फाइन. क्योंकि देखिए जब ये माइंडसेट से कोई आता है ना, ये एक बहुत डीप डार्क स्पेस होता है जब लोग अपने आप को इल्जाम देते हैं. Nobody is punishing you, right? Nobody is punishing you, but you are punishing yourself. आप एक चक्रव्यूह में होते हैं जिसमें आप दिन रात सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि मैं गलत हूँ. ये सबसे सॉरी स्टेट होती है. आज का जमाना कैसा है कि हम दूसरों को इल्जाम देते हैं. मतलब किसी ने कुछ नहीं भी किया तो उस पर
ब्लेम डालो, तुमने ये किया, तुम, बिकॉज इट्स अ हर्ड मेंटालिटी। सब इकट्ठा एक गोट को पकड़ो, उसको ही बलि करो, ठीक है। बट ऐसे भी लोग हैं जो इंट्रोस्पेक्ट करने लगते हैं अपने लाइफ को, अपने एक्शंस को, एंड ही सेड कि आई एम नॉट अ गुड सन, no matter what I do now, no matter I'm a big manager, I am at a post where everybody is respecting me, I don't respect myself, because when my mother needed it, when I was supposed to take care of her and I was not there, she passed away. I said, did you think about all of this thing all along, so many years, 2 3 years down the line? He said, every single night, every single night. Now this is something, see, जब हम बात करते हैं ना तो हमें बहुत हल्का लगता है, पर ये किसी के लाइफ में किसी को कैंसर दे सकता है, ये एक होम्योपैथिक फिजिशियन को ही पता होता है। क्योंकि हैनेमन ने खुद कहा है कि हम वो चीजें पकड़ते हैं जो मटेरियलिस्टिक या एम्फिरिकल साइंस नहीं पकड़ सकता। Yes. Big deal. He just felt guilty about things. Okay, he started blaming himself. So for all of these things, na, how come this transcended into a syphilitic disease? This is so important to understand. फीवर तो सो रहा होता है, फीवर तो हल्का फीवर था ना, हाँ. हो गया, वाइट टाइफॉइड हो गया, बट ये तो ऐसा फीवर था जो उसको डायरेक्टली डेथ बेड पे ले जाने वाला है, ठीक है। तो ये सोरा नहीं होता, ये सिफिलिटिक होता है। सोरा तो मैनिफेस्टेशन होता है, बॉडी फेंक देती है, देख लो बुखार आ गया है, तुम उसमें से चूज करो तुम्हें क्या करना है। इसलिए अफोरिज्म 3 में क्या बोला हुआ है, देयर हैज टू बी अ रिलेशन बिटवीन डिजीज एंड मेडिसिन। डिजीज और होम्योपैथी का कोरिलेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप पेशेंट को डिजीज ही नहीं पूछते हो तो आप माइजम किस बेसिस पे पकड़ेंगे? आप अगर पेशेंट का सिर्फ चेहरा देख के मेडिसिन देने वाले हो तो आप माइजमेटिकली कहाँ वर्कआउट कर रहे हो ना। तो मैं सबको कहती हूँ कि माइजम बहुत टफ है पढ़ना, इसलिए बहुत सारे हम लोग सब, हम नहीं बट बहुत सारे होम्योपैथ्स वो स्किप करते हैं। तो हम सिंगल कीनोट पे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, हम फिर एक पहले हम सर्दी आपकी ठीक करके देंगे, उसके बाद हम एसिडिटी ठीक करेंगे। तो पहले एलियम सेपा देंगे, फिर नेक्स्ट टाइम आप आएंगे फिर नक्सोमिका देंगे, कभी कुछ लोग नक्सोमिका आर्सेनिक मिक्स करके देंगे कि बारी बारी से कुछ तो छूट जाएगा, है ना। तो ये तो बोला ही नहीं है ऑर्गेनॉन में, सिंगल रेमेडी मिनिमम डोसेज की बात हुई है। हमारा साइंस ही इसलिए हिट हुआ था क्योंकि हम मिनिमम डोसेज देते थे, हम थोड़ी ना एक्स्ट्रा डोसेज देते। और एक्स्ट्रा डोसेज देने से मैंने कई केस खराब किए मेरी लाइफ में स्टार्टिंग में। जब मुझे रियलाइज हुआ कि ये मैं गलत कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सब्र आना चाहिए, तो केन्स 12 ऑब्जर्वेशन जब हम क्लास में कॉलेज में पढ़ते हैं ना, उसको कितने होम्योपैथ्स क्लिनिक में अप्लाई करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही वैसी नहीं है, राइट। टीडीएस अगर है हम, ना, हम लोग थोड़े आलसी हो गए हैं, टीडीएस प्रोसेस है ना। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ही, देखो, केस लेना हाफ डन होता है, बट फॉलो अप इज द बाप ऑफ एवरीथिंग। दवाई दे दी, पेशेंट चला गया, पैसे मिल गए, ठीक है, इस मेंटेलिटी से तो हम जी रहे हैं। बट जब पेशेंट फॉलो अप के आता है तब हमें डिसाइड करना बहुत तकलीफ में आता है कि अब हमने करना क्या है, सेकंड प्रिस्क्रिप्शन देना है, रिपीट करना है, वॉट बहुत सारी चीजें, दवा चेंज करनी है। अब ये जो अंकल थे, इन्हें सारी हिस्ट्री ले ली, हॉट पेशेंट थे। इनका ना, मैं और फिजिकल्स कुछ रीड कर देती हूँ तुमको मैं। ब्लैकिश डिस्कलरेशन थे नक्कल्स में, एसिडिटी है, सीवियर फ्लैचुलेंस, इंडाइजेशन, माउथ अल्सर का टेंडेंसी था इनका, मतलब मुंह में छाले आना। देखिए माउथ अल्सर ना कौन सा माइजम होता है, इट्स नॉट सोरा, इट्स सिफिलिस, अल्सरेशन हो रहा है, यस. आपका म्यूकस मेम्ब्रेन उधड़ रहा है। तो इस पेशेंट को अल्सर काफी टाइम से होते थे, ऐसा नहीं है। हैनेमन ने इतनी खूबसूरत बात कही है कि कोई डायरेक्ट उठकर डायरेक्ट सिफिलिस नहीं लाएगा अंटिल इट कम्स फ्रॉम द वूम। इसलिए जो बच्चे ऑटिस्टिक पैदा होते हैं, एमआर होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन या कंजेनाइटल डिसऑर्डर से होते हैं, हम मदर का सोरा साइकोसिस सिफिलिस पकड़ते हैं, क्योंकि बच्चा डायरेक्ट पैदा होते से कैसे सिफिलिस में आया, उसकी माँ ने ट्रांसेंड किया है ये चीजें, राइट। तो अगर अगर एक पेशेंट कैंसर में जा रहा है तो बॉडी इवेंचुअली विथ ईयर्स तुमको वार्न करती रहती है। अब ऐसा नहीं है कि माउथ अल्सर वाले सबको ब्लड कैंसर होगा, ऐसा नहीं होता, राइट। बट सिफिलिस था ना, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज था हेड एक, राइट साइडेड ऑलवेज, एम्लोरेशन बाय ईटिंग ड्रिंकिंग टी, हॉट, थर्स्टी, डिजायर स्वीट्स, स्पाइसी,
he had fracture right sided. Okay. Now all of these things, hot patient है, thirsty है, desire aversion. देखो इस पे अगर मैं एक CML के पेशेंट को ट्रीट करूंगी तो मैं बेवकूफ हूँ, क्योंकि मैं एक फिजिकल जनरलिटी पे एक बहुत ही हार्डकोर सिफिलिस नहीं ठीक कर सकती. समझ में आ रहा है? मुझे इस पेशेंट का रेयर, पेक्यूलियर, स्ट्रेंज सिम्टम पकड़ना ही है, और वो मैं माइंड से पकड़ूंगी, क्योंकि फिजिकली पेशेंट का कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिल रहा था मुझे. ठीक है, तो मैंने माइंड पकड़ा उसका. अब ऐसे सिचुएशन में हम क्या पकड़ेंगे, जो मैंने अभी स्टोरी बताई है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि अब हम उसका बेसिक नेचर समझेंगे, क्योंकि होम्योपैथी जितना इजी है उतना टफ भी है. हमें क्या पिक करना है, इसी में हम हमारी आधी उम्र निकल गई कि हमें पिक क्या करना है, पिक क्या करना है. तो बेसिक कैसा इंसान है, मुझे पता है कि सच्चा इंसान है, ये पोस्ट पे बहुत अच्छी है. देखो अगर ये इतने हाई पोस्ट पे है और ये बहुत सीरियसली बात कर रहा है, तो मैं ये भी सोच सकती हूँ कि मैं जब ड्रग बताऊंगी तो मैं बताऊंगी कि मेरे दिमाग में प्लैटिना भी आया. अच्छा. क्यों? क्योंकि एक ऑरा होता है, आप सीरियस होते हैं, आपको लगता है आप बेस्ट है, मतलब पीरियड. या हाँ, प्लैटिनम. हाँ जी. तो एक कुछ रेमेडीज ना एक ऑरा लेकर आती है सीरियसनेस का. अब हमें ये डिसाइड करना है ये कैसे टाइप का ऑरा है. हाँ, तो मुझे ये पता चल गया कि ये इंसान हर काम अच्छा कर रहा है, सच्चा है, गलत नहीं होने देता, बहुत कोशिश करता है कि सब सही से हो लाइफ में, बहुत ही फास्टिडियस है, बहुत मेटिकुलस है. ओके. और छोटी चीजों पे ध्यान है उसका. ऑफिस में हर कोई गलती नहीं कर सकता, क्योंकि साहब है तो सब लोग गलती नहीं कर सकते. कुछ लोग बहुत डिक्टेटोरियल होते हैं. डिक्टेटोरियल मतलब क्या, कि जो मैं कहूंगा वही होगा, मेरे अलावा नहीं होगा. हाँ. पर ये तो लोगों के लिए करता है, समझ में आया? इट्स नेवर माय वे और हाईवे, इट्स ऑलवेज पीपल्स वे, एंड एवरीथिंग हैज टू बी करेक्ट. Okay. Yeah. So a lot of people are answering also. Yes, Komal, reproaching himself, conscientious about refill. Perfect. तो बंदा रिप्रोचिंग हिमसेल्फ में है, यानी अगर मम्मी गुजर गई है, तुम खुद कोविड से जूझ रहे थे, पर तुम अपने आप को इल्जाम दे रहे हो. यस, शीतल, होम्योपैथिक सेल्फ रिप्रोचमेंट. मतलब रिप्रोच मतलब क्या होता है, रिप्रोच का मतलब होता है ब्लेम. ठीक है. रिप्रोचिंग अदर्स मतलब हमारी कोई गलती नहीं है भैया, तुम्हारे वजह से हमारी लाइफ खराब हुई है, मेरे पति ने ये किया, मेरी बहन ने ये किया. राइट. Oneself is when person started pointing at themselves. See, this is an autoimmune rubric. This is a syphilitic rubric. मतलब हम अपने कंसाइंस को खुद ही मार रहे हैं. हाँ. हाँ, मैं रोज ये सोच रही हूँ मेरी गलती थी, मैं मतलब मुझे जेल नहीं हो रही है, पर मैं अपराधी हूँ. ये मैंने खुद को ठहरा लिया है कि मेरा अभी ना कुछ फायदा नहीं है, मेरा मैनेजर उनके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे को जो करना था मैं नहीं कर पाया वो चीज. ठीक है. तब फिर मैंने एक रूब्रिक पकड़ा, डिल्यूजन ही हैज निग्लेक्टेड हिज ड्यूटी. मैंने एक रूब्रिक ये पकड़ा. मैंने ये पकड़ा कंसेंशियस ट्रिफल्स अबाउट. मतलब कंसेंशियस ट्रिफल अबाउट मतलब ये ऐसे लोग होते हैं ना, इनकी नजरों से छोटी छोटी चीजें नहीं चुकती. ठीक है, मैं खुद हूँ वो. तो मैं ये रूब्रिक बहुत फास्ट पकड़ती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये वो लोग होते हैं जो हर छोटी चीज पे उनकी नजर होती है, उनका ध्यान होता है, वो टेक केयर करते हैं उन चीजों की. राइट. और रिप्रोचिंग वन सेल्फ क्या होता है कि इंसान खुद को उस ब्लेम में डालता है. अब हम डिल्यूजन लेवल पे क्यों गए? देखिए, जब आप सिफिलिस में जाते हो ना, आप परसेप्शन रिसीव करना सीखना चाहिए आपको, कि बॉडी आपको एक परसेप्शन दे रही है, और वो परसेप्शन ये है कि मैंने जो मेरा कर्तव्य था एज अ सन, मैं एक पराये इंसान का ऑफिस में पोजीशन दे सकता हूँ, बट मैं एक बेटा होकर अपनी माँ को नहीं करवा सकता या बचा नहीं सका. तो इसे लगा कि मैंने तो भैया आई हैव जस्ट निग्लेक्टेड माय ड्यूटी. तो देन नाउ आई टुक दिस रूब्रिक्स, 2 रूब्रिक्स, हॉट है एंड एवरीथिंग. मैंने उनको, या डॉक्टर वंश करेक्ट, ऑरम एलिमेंट था इसमें, मैंने दिया उनको ऑरम सेल्फ. ठीक है, क्योंकि सेल्फ एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था, स्किन का डिस्कलरेशन था, बहुत दयालु, दे आउट गो एंड डू थिंग्स फॉर अदर पीपल एंड एवरीथिंग, डिजायर स्वीट्स एंड ये सारा पकड़ के हमने, हॉट है तो ऑरम सेल्फ दिया उनको. फिर मैं जब ना बाद में मैं ना इसे एलन की नोट से पढ़ रही थी, मैंने कहा चलो रीड करते हैं कि क्या क्या है. तो एलन की नोट में एक बहुत खूबसूरत लाइन दी है डॉक्टर एलन ने. उन्होंने लिखा है, मैं तुमको पढ़ के सुनाती हूँ.
उन्होंने लिखा अनईजी, हरीड, great desire for mental and physical activity, oversensitive, least contradiction excites wrath. Least contradiction excites wrath. WRATH. रात मतलब क्या होता है ना, एंगर के फॉर्म होते हैं, रेज, रॉथ, रैथ, रॉथ जो बोले आप, ठीक है। तो ये सिफिलिस होता है। आप ना गुस्से में टीवी नहीं फोड़ते, आप गुस्से में बैट नहीं तोड़ते। तो जब पेशेंट को सीएमएल होने वाला था, उसके पहले ना पेशेंट के अंदर एक रेज था, फिजूल का गुस्सा, इतना गुस्सा कि एंगर वायलेंट है। तो मैंने फिर बाद में ये सारे रूब्रिक्स देखना चालू करे, एंगर वायलेंट, डिलीरियम एंगर, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, और देखा कि सब में ऑरम आ रहा है। मतलब ये तो लो लेवल के रूब्रिक्स थे, पर ये तो लो लेवल के रूब्रिक्स थे, पर इसमें क्या था ना कि इसमें भी ऑरम आ रहा था। तो मैं समझी कि ठीक है, ये तो जर्नी हो गई। मतलब औरम सिर्फ रोएगा, सुसाइडल डिस्पोजिशन करेगा, हाँ, ऐसा नहीं होता ना। कल वैसा नहीं। आज आज मैं ना एक बहुत अच्छी बात आपको औरम के बारे में बताऊंगी, सॉरी ग्रीफ के बारे में बताऊंगी। देखिए एक ग्रीफ भी है, मदर्स डेथ। आप रूब्रिक्स डालते जाइए। मैं है ना इंट्रोस्पेक्टिव स्टडी करती नहीं जल्दी, क्योंकि उससे मैं बायस्ड हो जाती हूँ। मुझे ऐसा हमेशा लगता है, क्योंकि 10 साल लगे अनबायस्ड होने के लिए, तो पूरी कोशिश करती हूँ कि अनप्रेजुडाइज रहूं मैं। तो पर कभी कभी मैं जब रीड करती हूँ, जो सेमिनार होता है या मुझे कहीं केस प्रेजेंट करना है, तब मैं बुक्स खोलती हूँ और फिर मैं तब इंट्रोस्पेक्टिव स्टडी करती हूँ। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि जब मैं इमोशंस पढ़ रही थी, तो ग्रीफ इतना खूबसूरत इमोशन है, क्योंकि हम हर कोई ग्रीफ के थ्रू गया हुआ है, राइट। बहुत सारे लोग ना, ग्रीफ यानी दुख होता है, दुख बता नहीं पाते। मेल्स का दुख दिखाने का एक ही तरीका है, वो गुस्सा होते हैं। उनके घर में कोई गुजर गया, वो गुस्सा करेंगे। उन्हें बिजनेस लॉस हो गया, वो गुस्सा करेंगे। उनका बच्चा कुछ गलत काम कर रहा है या उनका बच्चा गुजर गया, वो घर पे बहुत गुस्सा करेंगे। सो ग्रीफ जो होता है ना, बहुत बार कवर्ड अप रहता है एंगर से। और औरम ये एक परफेक्ट कल्मिनेटेड ड्रग है, जहां ग्रीफ, एंगर, सिफिलिस, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होते हैं। समझ में आपको? Yes, ma'am. अभी डब्ल्यूबीसी इतना लेवल है, अगर आप बोन मैरो, ये सब बोन है, राइट। तो मुझे ये चीज पता होना चाहिए कि अगर मैं बोन, ब्लड, सिफिलिस, ग्रीफ, ये सारी चीजें देख रही हूँ, तो मुझे ऐसे ड्रग को ढूंढना है जो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर चीज आ गया। हाय, एम आई विजिबल? मैम थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो रहा है नेट में। अभी 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 ऑल ओके? हाँ, अभी इट्स फाइन। स्नेहा? यस मैम। ओके ओके ओके, मैं बोलूं? यस मैम, यस मैम। तो ये सारी चीजें ना पकड़कर आपको दवाई देनी चाहिए। मैं सिर्फ स्वीट डिजायर और बोन पेन्स या फीवर को मेडिसिन दूंगी, तो मैं डीप डाउन माइजम को नहीं पकड़ पाऊंगी कभी, ठीक है। तो जब आप ऐसे ड्रग्स देते, आज मैं आपको आरम सेल्फ का एक और केस बताऊंगी। क्यों? क्योंकि जब मुझे इसका रिजल्ट आया ना, द पर्सन हैज स्टॉप्ड सीएमएल ड्रग्स, ओके, हिज डायबिटीज हैज रिवर्स्ड, हिज स्किन डिस्कलरेशन हैज लेसेंड, and very important, over the time when he comes, I will put up this case on Instagram very soon. So towards every follow up, I found out that this person is getting better. So he first said me, अब आप मुझे बताइए, अगर CML है, अगर उनको स्किन डिस्कलरेशन है, उनको शुगर है, तो फॉलोअप में हमने क्या देखना चाहिए? यहाँ तो हमारा काम स्टार्ट होता है ना। हम फॉलोअप में क्या देखेंगे? मैं ऑडियंस से पूछूंगी, 30 लोग हैं, 30 में से कोई कोई रिप्लाई करो कि ये इसमें से हम क्या जाते हुए हमने देखना चाहिए। क्या बताती हूँ। तो जब स्किन डिस्कलरेशन जाने लगा ना, तो मुझे लगा अरे यार, ये तो स्किन जा रहा है। मतलब हाउ वुड आई नो कि सीएमएल बेटर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि एलोपैथिक ड्रग्स तब तक चल रही थी।
मैंने कहा अभी हाउ वुड आई नो दिस पर्सन इज getting better or not getting better. So sugar started dropping. Understood? Okay. कि जब क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया होता है ना, हम इफ दे आर ऑन ड्रग्स तो उनका ऑलरेडी डब्ल्यूबीसी लेवल उतर जाता है. हमारे पास पेशेंट आते ही लेट है ना. तो अभी इसको समझेंगे कैसे. इनकी कंसेक्यूटिव 4, 5, 6 सीबीसी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही थी. ठीक है. उनका ब्लड प्रेशर वाज रिड्यूसिंग. हिज शुगर स्टार्टेड फ्लक्चुएटिंग फर्स्ट and then it started reducing so much so that now his medicines are stopped. एंड ही डेवलप डायबिटीज ड्यूरिंग सीएमएल टाइम ओनली. क्या हुआ ना, कोविड में बहुत सारे लोगों को स्टेरॉइड दिया, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने डायबिटीज आ गया उनको. So this was all induced diabetic. So all young people have also gotten diabetic because of COVID steroids that were put up in their body. So now when this started going, I started seeing that there is a lot of fluctuation in blood sugar. So I said, you have to wait. You will have to wait till your oncologist suggests you to stop medicine. And after 1 year, most of his medicines got stopped. Now he comes only because he fears that वापस CML तो नहीं आ जाएगा, अभी सब बंद किया है तो ठीक है, आने तो आ रहे हैं तो. So he's on SL for since a very long time. So we are giving him Sac-Flag for a very long time. What changed him? He got out of this grief. He got out of this feeling of not doing his duty correctly, or maybe he started reproaching himself. वो उसका गया और धीरे धीरे ना he started becoming very loving towards wife. So then the wife said की आता मराठी में बोला की इनका ना आता यांचा स्वभाव खूप बदलला आहे आणि हे आता मॅनेजर नाही आमच्या घरी. इनको लोग चिढ़ाते थे इनके घर में कि ये मैनेजर है, ये घर पे भी मैनेजर गिरी कर रहे हैं और बाहर भी करते हैं. So when you give homeopathic medicines, trust me, you will see reversal of fortune. You will see people who were about to get divorced don't get divorced, because it's such a constructive science. It's a beautiful spiritual science that it will only do good to you if you take a very perfect simile. And this all I have learned from Dr. Vijayakar sir, late Dr. Vijayakar sir, Praful Vijayakar sir. And मैं जब उनके केस देखती थी या जब मैं उनकी बातें सुनती थी तो मुझे लगता था ये क्या है, मतलब कुछ भी ऐसे कैसे, मतलब ठीक है पेशेंट ठीक हो गया है बट ये क्या ऐसे कैसे हो रहा है कि उसकी बुरी चीज हर चीज अच्छी हो रही है. बट जब ये मेरे साथ होने लगा क्लिनिक में तो फिर मुझे समझ में आया कि आप तब तक आपके साथ नहीं होगा जब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे. ठीक है, आपको वो एक बिलीफ होना चाहिए अपने सिस्टम पे. तो ये एक केस थी. अब मैं दूसरी केस आपसे, एक्चुअली 3 केसेस है ऑरम सेल्फ की, तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं कौन सी केस आपसे डिस्कस करूँ. There is a query in the chat box कि what was the doses given? Yeah, Aurum, I give Aurum Self 200 single dose. Aman Tasha Aslam. Yes, Vijay. Herring's law of cure. Herring's law of cure is आपको अगर Herring's law of cure मॉडर्न वर्जन जानना है, आपको अगर थ्योरी ऑफ सप्रेशन जानना है, तो ये सारे का जो कल्मिनेशन है ना, एक बुक है 7 लेवल्स ऑफ सप्रेशन बाय डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर. मेरी लाइफ इस बुक ने चेंज की है. मतलब मुझे अगर एक पर्सपेक्टिव आया है ना कि मैं इतने साल से क्या प्रैक्टिस कर रही थी, या डिजीज कैसे दिखता है मॉडर्न डे में, और हमें कैसे इसको समझना है कि ये आया तो ये होगा और अब हमें रुकना है, अब हमें दवा रिपीट करनी है. ये बुक है, आप प्लीज सब लोग रीड करना. मैंने इतने बार रीड की है बुक क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये बुक, तो आप जरूर रीड करना ये बुक. अपार्ट फ्रॉम दैट, तो ये ऑरम सेल्फ वाला था. एक और ऑरम सेल्फ का मैं आपको बताती हूँ. एक इनफर्टिलिटी की केस थी जिसको मैंने ऑरम सेल्फ दिया था, और एक अभी रिसेंटली मैंने मेडिसिन दिए थे, मेरे ख्याल से फरवरी में वो पेशेंट आई थी और उनका नाम है सो मैंने ये जो दवाई है ना ऑरम सेल्फ, वो ऐसे फीमेल को दिया है जिसको एवियन था. तो मैं शॉर्ट में बोलती हूँ क्योंकि अभी हमने इतना डिटेल किया है तो दोनों केसेस कवर कर लेंगे फास्ट. ठीक है. So ये लेडी पेशेंट है, हर एज इज 53. सो शी हैड कम टू मी फॉर राइट साइडेड हिप पेन. ओके, नॉन केस ऑफ अवेस्कुलर नेक्रोसिस, एवीएन बोलते हैं उसे. ये भी बहुत ज्यादा कॉमन है पोस्ट कोविड. अगर आप क्लिनिक के बेसिस पे देखोगे तो आपको बहुत सारे यंग लोगों में भी एवीएन मिल रहा है. आपको ओल्ड पेशेंट्स में एवीएन पहले होता था, पर पोस्ट कोविड इतने लोगों को एवीएन हुआ है.
ऑफ कोर्स साइड इफेक्ट्स हैं जो मेडिसिन लिए थे उसके, प्लस यू यू नेवर नो वैक्सीन एंड ऑल एवरीथिंग। तो एवियन का क्या पैथोलॉजी होता है, सड़ता है हड्डी अंदर से, है ना, पोकल होती है। अगर आपको हिप जॉइंट पे एवियन हो रहा है, हिप जॉइंट कितना स्ट्रांग होता है, हमारा पूरा स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन योर हिप्स, राइट? सो नाउ दैट हिप इज गेटिंग अफेक्टेड, इट इज गेटिंग नेक्रोस्ड, इट मींस दैट द बोन इज ईटिंग अप द नेक्रोसिस। तो ये क्या हो रहा है ना, हड्डी अंदर से मर रही है, कोई भी चीज मर रही है वो सिफिलिस होता है। गैंग्रीन हो गया, नेक्रोसिस हो गया, जहां ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है वो खत्म हो रहा है, ठीक है, जहां इंसुलिन नहीं पैदा हो रहा है, ये सिफिलिस है। ऐसे हम पकड़ते हैं कि देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑलरेडी हैपनिंग। सो व्हेन समबडी कम्स विद एवियन, वी नो देयर इज अ डिस्ट्रक्शन, doesn't so they did an MRI and everything, and it was which grade? It was avian grade 3. Okay, right sided, and sitting aggravation, lifting leg aggravation. She also had vitiligo. I mean, it's very obvious looking at the skin that she had vitiligo. मतलब वाइट पैचेस थे उसके चेहरे पे। राइट साइडेड कौन था जो ऑपरेट हो गया? हॉट, स्वीट डिजायर, और क्या है, मैं आपको फास्ट फास्ट बताती हूँ सारी चीजें। फैमिली हिस्ट्री में मदर डाइड ऑफ किडनी फेलियर, ओके, फादर डाइड ऑफ हार्ट अटैक, पेसमेकर लगा था, ओके। Father also had hip pain, but they could not diagnose it, so we don't know if it was avian or anything. Okay. Now, when we started talking, who died? Husband died of multiple myeloma in 2022, July 2022. Okay, so she is a widow basically. अब हमने जब इनकी हिस्ट्री स्टार्ट की ना, तो ये आंटी, शी वाज वेरी अप स्ट्रेट सिटिंग, टॉकिंग इन अ मैनर, आपको बहुत टाइम हॉटी लगती है औरतें, है ना, कि अरे जितना पूछा उतना जवाब, इधर उधर देखना, और एज इफ शी वाज प्रिटेंडिंग एज इफ हर सन गॉट हियर, she is not interested in taking medicine, homeopathic medicines. Okay, so ऐसे पेशेंट जब ईगो थ्रो करते हैं तो बहुत मजा आता है, क्योंकि हम अपने ईगो पे नहीं लेते हैं, लेना भी नहीं चाहिए। ये फ्रैंक सिम्टम होते हैं पेशेंट्स के, है ना। अगर कोई पर्सन इरिटेबल है क्लिनिक में, या कोई अब्यूजिव हो रहा है क्लिनिक में, गालियां दे दे के हिस्ट्री दे रहा है, किसी और को गालियां दे रहा है, मतलब आजकल बहुत मॉडर्न तरीका है, सॉरी टू से एंड देन गाली दे देते हैं, तो ये ऐसे स्टाइल में लोग कवर अप करके बोलते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग, डोंट टेक इट पर्सनली, होम्योपैथ शुड बी ब्लैंक पेपर, इट्स सच एन अमेजिंग थिंग टू हियर सो मेनी पीपल टॉक सो मेनी थिंग्स। ओके, सो हमने एक लिया इनका रूब्रिक, ग्रीफ लिया। ओके, सो आई सेड कि हस्बैंड जाने के बाद क्या फर्क पड़ा आपकी लाइफ में? मैंने कहा ये तो बड़ा स्टूपिड सा सवाल है, पर मैं फिर भी आपसे आंसर जानना चाहती हूँ, क्योंकि अगर किसी का कोई गुजरता है तो आप ये सवाल मत करिए कैसा लगा आपको, आपकी मम्मी गुजर गई तो, ये कितना स्टूपिड सवाल है ना। पर मैं कभी कभी करती हूँ स्टूपिड सवाल, क्योंकि वो केस टेकिंग को एड करता है ना। तो मुझे ये देखना था, ये इतना हॉटी बैठी, ये मुझे रिडिक्यूल करेगी क्या? क्योंकि अगर मैं किसी को पूछूं तुम्हें कैसा लग रहा है, आपके पति गुजर गए, तो वो बोलेगी आपको क्या लगता है कैसा लग रहा है, ड्रग चेंज हो जाएगी। अगर वो रोने लगेगी, ड्रग चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसने कहा कैसे लगेगी मैम, कैसे लगेगी, अकेली हूं मैंने कहा आपके दो दो बेटे हैं घर पे, बेटों से क्या है मैम, मैं अकेली हूँ, मैं दिन भर टीवी देखती थी, मैं अभी भी टीवी देखती हूँ, हमारा रो हाउस है, आजू बाजू पड़ोसी है, मैं नहीं जाती हूँ पड़ोसी के पास। अगेन आई फेल्ट कि अरे इतना ईगो कैसे, आप क्यों नहीं जा रहे, आप अकेले हो ना, तन्हा हो आप, आपने जाना चाहिए, तनाई दूर करनी चाहिए। तो शी सेड नहीं मैं नहीं जाती, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो आई सेड व्हाई आंटी, व्हाई डोंट यू गो? तो शी सेड कि वो लोग सब चुगली करते हैं, इसकी उसकी बुराइयां करते हैं, और खाना खाते हैं उनका और उनकी बुराई करते हैं। तो मैंने ना लोगों को खाना देना भी छोड़ दिया, पड़ोसी एक दूसरे को देते ना, पहले देते थे, एक कल्चर होता था घर में पका है तो एक दूसरे को शेयर करो। आज का कल्चर स्विगी जोमेटो है, तो खुद हम बाहर से खा रहे हैं तो पड़ोसी को क्या देंगे, राइट? तो मैंने कहा कि आंटी आप जाया करो, जरा बात किया करो। तो शी सेड नहीं नहीं मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, मेरा मन ना मानता नहीं है। अगेन, फीमेल्स का ग्रीफ करने का तरीका बहुत अलग होता है, बहुत रोएंगी, या तो सल्क करती है, हम लोग ना बहुत सल्क करते हैं, एक ही चीज को पकड़े रहेंगे और बहुत सल्क करते रहेंगे, ये क्यों हमारे साथ, और मैं इतनी बेचारी हूँ, मेरे साथ ही कैसे हो गया, ठीक है। या तो हम अकेले हैं पर हम दिखाएंगे नहीं कि हम अकेले हैं, बिकॉज हमें वो हेड स्पेस चाहिए होता है ना।
वी नीड सॉलिट्यूड टू मेक सेंस। तो हर औरत को, हर औरत रोती नहीं है, हर औरत चिढ़ती नहीं है, कुछ औरतें चुप होती है और वो काम में बिजी होने लगती है। So then she started working at home, cooking and staying alone at home. तो मैंने rubrics लिए थे grief, delusion, forsaken. जो मैं हॉटी पकड़ रही थी ना, फिर मैंने उनके बेटे को बुलाया। मैंने कहा आपकी मम्मी कैसी है, मुझे तो थोड़ी सी अलग लग रही है, आप बताओ। अरे खूब हट्टी है। हट्टी मतलब क्या होता है? ऑब्स्टिनेट। मराठी में हट्टी का मतलब होता है जिद्दी, ऑब्स्टिनेट। तो ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है कि जो मुझे करना है मुझे करना है, मेरी जिद है। ठीक है, कभी एक घमंड के तौर पे भी लोगों को दिखता है, कभी ऐसा लगता है कि बहुत ही हेडस्ट्रॉन्ग है, ठीक है, पर यह है जिद्दी। उसके बेटे इतना उसको बोलते कि आप अकेले रहते हो घर में, हम काम के लिए जाते हैं, आप पड़ोसी में जाओ, रिश्तेदार के यहाँ जाओ। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। तो बोली ये सुनती ही नहीं। इस ट्रीटमेंट के लिए भी मैम हमारे इतने झगड़े हुए तब ये आई। तो इसका बेसिक नेचर ही जो उसका सोरा है ना, वो ऑब्स्टिनेट है बहुत ज्यादा। मैंने ऑब्स्टिनेट लिया उनका। फिर मैंने उनको बोला अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं आपको ठीक करूंगी आप सबसे पहले कहाँ जाओगे? तो शी सेड कि एक वनी करके जगह है नासिक के पास, वहां उनकी कुल देवता है उनके, तो वो उधर जाना चाहती है। बट बिकॉज एवियन हो गया है तो वहां सीढ़ियों से चढ़ना होता है ऊपर, राइट? तो वो नहीं चढ़ पा रही है। तो वो बोलती है कि अगर मैं ठीक हुई ना तो मैं वहां जाऊंगी। तो मैंने कहा इतना क्या इम्पोर्टेंट है, मतलब आप घर पे भी भगवान का पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। तो वो बोली नहीं नहीं, मेरे पूरी उम्र मुझे अगर किसी चीज ने आधार दिया और सपोर्ट किया वो है मेरे भगवान ने, मेरे रिलीजन ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। सो देन आई थॉट कि शी इज ऑल्सो वेरी रिलीजियस। तो फिर मैंने बहुत सारे उनको सवाल स्टार्ट किए पूछने के लिए कि आप ये व्रत रखती है क्या, वो करती है, क्योंकि हमें ना सुपरस्टिशन, रिलीजियस, ये सारी चीजों में भी डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए। आज हमारा ना स्पिरिचुअलिटी बहुत हद तक ना सुपरस्टिशियस भी हो गया है कि मैंने ये किया तो ये मिलेगा, वो किया तो वैसा रहेगा। तो हमारा जो कंसाइंस है ना ये चीज से प्ले करता है। डेफिनेटली इनका भी कंसाइंस ऐसा प्ले करता है, बट ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं कि मैं ये 10 नारियल फोड़ूंगी तो ये होगा, ये सब नहीं था। शी सेड मेरे मन में इतना ना, देयर इज डीप कनेक्शन ऑफ मी विद गॉड। तो फिर ये सारी चीजें, नेक्रोसिस, बोन का खराब होना, ये सब अगर आप केंट उठाओगे, आप एलन उठाओगे, आप कोई भी बुक उठाओ, सब में ना ये बोल्ड में लिखा हुआ है कि आपको ये सारी चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी औरम में। आई गेव अ औरम सेल्फ, यू वोंट बिलीव, फेब्रुअरी में दिया है, अप्रैल एंड हो रहा है, 90% बेटर है। मतलब उनका इतना प्रॉब्लम था कि वो बाइक पे बैठ के आई थी तो बाइक के पेडल से नीचे उतरने में शी कुड नॉट गेट डाउन। शी सैट ऑन माई क्लिनिक इन माई चेयर, वो खड़े नहीं हो पाती थी। नाउ शी इज जंपिंग, शी इज स्किपिंग एंड शी इज टेलिंग मी ऑल ऑफ दिस थिंग। ओके, ये बेटर होना बहुत जरूरी है। इनके केस में मैंने ऑरम सेल्फ 2 बार रिपीट किया था। मैंने इनिशियली किया, शी फेल लिटिल बेटर, देन शी सेड मुझे अभी मतलब पहले जो फर्क पड़ा था अभी मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने इन्हें वापस से ऑरम सेल्फ 200 रिपीट करा एंड देन शी स्टार्टेड फीलिंग मच बेटर। तो ऐसे ये 2 केसेस हैं जिनमें मैंने ऑरम सेल्फ दिया। अब ये सारी सिफिलिटिक ड्रग होती है, ठीक है। हमको ये जो सारे रूब्रिक्स हम पकड़ते हैं क्लिनिक में, इनका ना इंटरप्रिटेशन बहुत वाइल्ड भी हो सकता है, पर यू शुड ऑलवेज स्टिक टू प्रॉपर डिक्शनरी, है ना। मैं बहुत ज्यादा इरेटिक या बहुत ज्यादा सेल्फ मेड रूब्रिक्स नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एसेंस टेक होना चाहिए। मैंने ऑर्गेनॉन का, मटेरिया मेडिका का। अभी ये दोनों केस में कहीं भी सुसाइडल टेंडेंसी नहीं थी, हाँ, फिर भी मैंने ऑरम दिया है एंड विथ रिजल्ट्स। तो हर ड्रग में ना आप सुसाइड मत ढूंढो। सुसाइड ना बॉडी कर रही है, किसी चीज का खत्म होना। CML itself is a towards death, ये itself सुसाइड है। तो कई बार डिजीज सुसाइडल स्टेट में होती है। पैथोलॉजी की फॉर्म में वो हाँ सोसाइटी। जी, परफेक्ट परफेक्ट। तो आपको वो पकड़ते आना चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसे रूब्रिक भी ले सकते हैं, डेथ, डिजायर, ये सारे सिफिलिटिक रूब्रिक्स होते हैं, ठीक है। अब एक और केस है, मैं फटाफट बता देती हूँ। ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी की केस थी, ठीक है। इनको 14 साल हो गए थे, बच्चा नहीं हुआ। ओके, सो वो अशरमन सिंड्रोम था। मैंने वो केस डाली हुई है मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे पेज पे है वो, और मैं डालती रहती हूँ क्योंकि हमारे पास सीरीज ऑफ टू बी मॉमी लिस्ट है।
तो जैसे जैसे जिसका बच्चा होता है हम टिक मार्क करते रहते हैं उसको। तो इनको 13-14 years के बाद मुझे लगता है शी गॉट कंसीव्ड लास्ट ईयर. नाउ शी डिलीवर्ड अ क्यूट बेबी बॉय. So she was elder sister, very caring towards parents. So she stayed in a different state. So sometimes when the parents had only two girls, okay, both of them are in two different states and parents are in Nasik. So यहाँ इनको थोड़ी भी तबीयत खराब होती थी ना, तो ये लड़की ना दूसरे स्टेट से भाग के अपने मम्मी पापा के पास आ जाए बार बार. तो मैंने कहा आप इतना क्यों आते हो, आप फोन पे बात कर लो, मैनेज कर लो. तो शी सेड नहीं, मैं रह ही नहीं सकती, मैं कैसे रहूंगी. अगर आप मुझे बताइए आपके माँ बाप को अगर तकलीफ हो रही है तो आप रह पाएंगे क्या मैम. तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं रह पाऊंगी. तो शी सेड इसलिए मैं आ जाती हूँ बार बार ट्रैवल करके, 8 hours ट्रैवल करती हूँ और आ जाती हूँ, बट मुझे रहना जरूरी है क्योंकि मैं वो गिल्ट नहीं ले सकती. देखिए आप औरम देखोगे ना, औरम का हर जगह गिल्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा रहता है, पर गिल्ट के बताने के फॉर्म बहुत अलग होते हैं. एक को गिल्ट था कि ड्यूटी नहीं करी, हाँ. ठीक है. अभी इसका गिल्ट देखो. So it's a love marriage, and when she got married, na, she became pregnant, but she aborted it. Okay. In the same year, after 5 months, she again became pregnant. Again, she aborted it because she thought we are just newly married, it's a love marriage, and I don't want to conceive and all that. And उसके बाद ये कभी कंसीव नहीं कर पाई. It's been 14-15 years now. ठीक है. तो बाद में पता चला कि इसको अशरमन सिंड्रोम है, इनके आईवीएफ फेल हो गए, 2 आईयूआई फेल हो गए, सब चीज फेल हो गया. वेरी होपलेस स्टेट. दे केम टू क्लिनिक फ्रॉम अदर स्टेट. तो मैंने इनसे सिर्फ एक ही सवाल करा कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया आपने. तो शी सेड कि माय यंगर सिस्टर गॉट मैरिड एंड बिफोर मी एंड शी वाज नॉट कंसीविंग. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू कंसीव. तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं कंसीव कर लूंगी तो फिर उसको लोग बोलेंगे कि क्या करेंगे. तो मैंने नहीं कंसीव करना है, पहले तू कर, बाद में ही मैं करूंगी. ठीक है. तो आई सेड ओके फाइन. सो इवेंचुअली डाउन द ईयर सिस्टर को तो काफी बार कंसीव हो गया, बट इनको नहीं हो पाया. तो मैंने कहा आपको क्या लगता है क्यों नहीं हुआ होगा. तो उसने कहा भगवान मुझे सजा दे रहे हैं ना. मैंने कहा क्या सजा दे रहे हैं आपको भगवान. तो बोलती है कि जब मुझे करना चाहिए था ना, रखना चाहिए था बच्चा, तब मैंने रखा नहीं, और अब मुझे रखना है ना तो भगवान दे नहीं रहा है. तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये सब भगवान का किया करा है. तो भगवान नहीं चाहते कि मैं वो, ही इज पनिशिंग मी. I said, no, he's not punishing you. He said, no. See, whenever I talk to a person and I know I want to check the intensity of emotion that person is feeling, I will always contradict them. कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा थोड़ी ना होता है, कुछ नहीं है. Then I want to see क्या ये easily changeable है, क्या ये अपना फुट डाउन इमोशन को. और अगर वो नहीं कर रहा है, केस टेकिंग के तरीके होते हैं, अगर वो नहीं कर रहा है और वो आपको बता रहा है नहीं नहीं मैम आपको ऐसा लग रहा है, पर मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है ना, मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जब मेरे को करना चाहिए था ना मैंने किया नहीं, और अब जब मुझे चाहिए तो दे नहीं रहा है भगवान. तो मैंने कहा ऐसा मत बोलो, भगवान तो सबको माफ करते हैं. तो शी सेड नहीं नहीं पाप किया ना, पाप किया मैंने, तो अभी मुझे मिलेगा. So then I started searching rubrics with sin, SIN, and I found a rubric very beautiful. Delusions send away days of grace. मतलब जब अच्छे वक्त थे ना, ग्रेसफुल डे थे जब, तब मैंने ऐसे पाप कर लिए जो मैं उसी की वजह से अभी नहीं हो रहे. तो ये एक जिस था इतना, आई वाज सो हैप्पी बिकॉज दिस वाज माय फर्स्ट टाइम टेकिंग दैट रूब्रिक. आई वाज सो हैप्पी कि इतना एप्ट रूब्रिक कैसे मिल गया. आधी खुशी तो वही कि अरे बहुत तगड़ा रूब्रिक ढूंढा है. और मैंने बड़ा डिस्कस करा, मेरे फ्रेंड्स के साथ किया और सबको बताया कि देख मुझे एक ऐसी चीज मिली है, लेट्स सी. यू वोंट बिलीव आई टुक दैट रूब्रिक एंड ऑफ कोर्स शी वाज वेरी फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एवरीथिंग, थिंकिंग अबाउट अदर्स एंड द गिल्ट फैक्टर कि ये गलती हो गई यार अपने से, ये नहीं होना चाहिए था. एंड आई गिव हर ऑरम सेल्फ एंड यू वोंट बिलीव इन 2 months शी गॉट प्रेग्नेंट. So I have their phone call recordings, I have their everything when she delivered. तो जो फैमिली, इट वाज लाइक अ मिरेकल. मतलब मुझे खुद शॉक हो गया था, मुझे लगा इतना तो नहीं कर सकते हम, मतलब करते हैं पर इतना अच्छा तो नहीं होगा. और हम सेल्फ
I'll tell you, has never disappointed me in my life. Aurum itself, आप औरम सेल्फ देखेंगे, औरम देखोगे ना, औरम में ना एक हार्ड करने की टेंडेंसी होती है. तो अशरमन सिंड्रोम पता है क्या होता है, कि जो यूट्रस की लाइनिंग होती है ना, सॉफ्ट होनी चाहिए. आप अबॉर्ट करो या उसमें प्रोसीजर्स करो या उसको आप इन्फिल्ट्रेट करो ना, तो वो खुरदुरी हो जाती है, यानी उसमें है ना स्कारिंग होने लगता है, फाइब्रोटिक होने लगती है. ऐसे वूम में बच्चा कैसे आएगा, नहीं आता. आईवीएफ फेल हो रहे, आईयूआई फेल हो रहे, ये फिजिकल पार्ट है. पर ये स्कारिंग जो है ना, वो उसके हेड में है. दिस थिंग इज नॉट गोइंग आउट ऑफ हर हेड कि मुझसे तो बदला है अभी, ये तो मुझे तो मिलने ही वाला है, मैंने पाप किया पाप किया पाप किया. See, apart from giving medicines, it is very important for homeopathic doctors to talk to their patient. हमें सिर्फ पैसा नहीं कमाना है, राइट? अगर आपके पास से कोई पेशेंट अपना मन हल्का करके नहीं जा रहा है, या आप उसका एक पर्सपेक्टिव का चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो ये घाई घाई में 15-15 मिनट में दवाई देके भगाने वाले काम मत करो. किसी से बात कर लो, स्पेशली फीमेल्स. I mean, because I'm a female homeopath, I know so many, 70% of my clientele is females only, and the kids. So we know that just being heard is such a therapeutic thing for women. And when you counsel them and tell them कि ऐसा बिल्कुल मत सोचो, कुछ नहीं है, दवा दिया है, हो जाएगा, and then she conceived in 2 months. So when you are treating such cases, if you don't know the underlying pathology, if you do not connect MISM, if you do, and मैंने सिंगल डोज दिया था, अदर स्टेट से आते हैं आप, आई मीन आई प्रिफर सिंगल डोज एंड एसएल जाता है. सो अगर आप ये सारी चीजें नहीं फॉलो करेंगे क्लिनिक में, जो प्रॉपर बुक्स में लिखी हुई है, देखिए आपको ना आज का वर्जन भी आना चाहिए. आप ये नहीं बोल सकते कि हम 200 साल पुरानी बुक पढ़ रहे हैं, बस उसी में करना है. जब मैं लेसर राइटिंग पढ़ती हूँ हैनेमन की, तो मुझे ऐसा लगता है अरे यार कोई इंटर्न ने लिखी है क्या ये बुक, क्योंकि उन्होंने बार बार अपने एक्सपेरिमेंट्स लिखे हैं. आज मैंने इसको एलो दिया, फिर ठीक नहीं लगा, फिर आज मैंने इसको एस्कुलस दिया, ठीक नहीं लगा, आज मैंने इसको सल्फर दिया, हाँ हाँ ये करने. तो हैनेमन ने ना ये सारी चीजें 12 साल करी है, और बाद में उनको समझ में आया ये वापस क्यों आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ पेशेंट के साथ, इतना क्यों मैं अलग अलग दे रहा हूँ, इतना रिपीटेशन क्यों कर रहा हूँ, इफ नॉट रिक्वायर्ड. फिर माइजम आया, ठीक है. तो जो उन्होंने अपने एक पीक एज में आकर चीजें करी है ना, वो आप अभी से अपना लो, है ना. आप क्यों वो गलतियां रिपीट करते हो कि आप आज रक्त सोमिका दे रहे हैं, कल सेपिया दे रहे हैं, फिर वो ठीक नहीं कर रहे तो ब्रायनिया डाल रहे हैं. ऑफकोर्स हम भी देते हैं, हमसे भी गलतियां होती है, हम भी रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, फिर वापस हिस्ट्री होती है, फिर वापस सिंगल रेमेडी जाती है. ये तो काम है ना. बट आपको यही तो हुनर है ना, यही तो सीखना है होम्योपैथिक फिजिशियन को, बच्चों को, सबको यही तो सीखना है कि हैनेमन जो 12 साल गलतियां कर चुके थे, उन्होंने वो लिख दिया, मैंने ये सब किया है, ये उनकी केस स्टडी है, ठीक है. आप केस स्टडी पकड़ो, पर आप इवॉल्व हो गए उससे. उन्होंने आपको एक ऐसा बुक दिया, ऐसा प्लेटफॉर्म देकर गए वो, कि आपको वो बोल रहे हैं कि इसके आगे इवॉल्व हो जाओ, अभी आप समझ लो. मतलब आज सिफिलिस ढूंढना बेसिक क्लिनिक में बहुत डिफिकल्ट है. किसी को सिफिलिस है पीनल एरिया में, या फीमेल को, क्योंकि ये सारी बीमारियां तो 200 साल पुरानी थी, पेंसिलिन आने के बाद ये हट गया, इसका मतलब क्या है, अब हमने देना ही नहीं है. तो ये सारी चीजें, सो यू शुड नो. आप एक होम्योपैथिक फिजिशियन है, आपको ना सब आना चाहिए. आपको आज का आना चाहिए, आपने अपडेटेड रहना चाहिए, आपको माइंड पढ़ते आना चाहिए, आपको फिजिकल्स पढ़ते आना चाहिए, आपको सब चीजें आनी चाहिए. आप एक स्फीयर पकड़ के प्रिस्क्रिप्शन मत दो, ऐसा मेरा कहना है. आप सब करो स्टूडेंट लेवल पे. आप जो फिजिकल्स दे रहे हैं उनके पास सीखो, जो माइंड दे रहे हैं उनके पास सीखो, और इवेंचुअली क्लिनिक में डिसाइड करो कि आपको कैसे देना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है. जब मुझे अगर कहीं बिल्कुल रिजल्ट नहीं आता है, मैं खुद ऑर्गन स्पेसिफिक ड्रग देने की सोचती हूँ, या मैं थेरेपेटिक ड्रग मैंने इतने मंगा के रखे हुए हैं सबके लाइफ देख देख कर, अब जब मुझे मौका मिलेगा मैं दूंगी. तो मेरा ये कहना है कि आप सिंगल रेमेडी दो, मिनिमम डोसेज दो, ऑर्गेनॉन को अपने क्लिनिक में लेकर आओ एक्चुअल प्रैक्टिस में. बस इतना ही था, बहुत फास्ट फास्ट बताया मैंने. टाइम की शॉर्टेज थी, हाँ इसलिए जी, हाँ जी. 1 घंटे में सुन पाए, वो भी मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कि आपने इतना शॉर्ट में कॉम्प्रोमाइज कर दिया सब कुछ. बट गुड सेशन, मतलब आई लव एवरीथिंग, सो गुड. थैंक यू स्नेहा. टू गिव
फॉर्मल ऐसे मतलब थैंक यू नोट एंड एवरीथिंग, बट आई एम सो इंस्पायर्ड राइट नाउ। मेरे को इतना ऐसा अच्छा अच्छा सा लग रहा है कि हाँ, आई हैव गुड सेशन, आई or quite visible in the comments as well. मतलब the audience has been lively throughout. सब लोग इतना ध्यान से सुन रहे थे. Thank you so much, ma'am, for such an insightful session. मतलब it was lovely having your time with us. You had a busy schedule, but you gave us your time. Thank you so No, much. no, I did not have a busy schedule. Saturday is my holiday, and I was looking forward to this session. At least then I pick up books and read. So you made me pick up books and read again. So thank you so much. Okay, bye, Sneha. Bye.